Yeah. Ah. Hello, is I'm audible? Everyone is I'm audible? You can type in the chat. Okay, okay. So we are continuing the same topic, electrochemistry, from the previous lecture. So that we is everyone is fine with Hindi plus English, or I have to speak in only in English? Is any student in the mid who is not comfortable in Hindi? Please type in the chat box. So, in the previous lecture, like we have studied the galvanic cells and the basics of electrochemistry. So, basically, we up to until this, we have only studied the standard state conditions. Standard state. And what is standard state? It is 25 degrees Celsius, 1 atmospheric pressure. So, what we have done, we studied galvanic cells. We study how to calculate the EMF of the cell, basically the potential of the cell at standard condition. So what happens if there's no standard condition, like if I change the temperature from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius or any 40 degrees Celsius, if I change the concentration of the cell, so what will happen? So we will study today, like the equation which is used for non-standard condition is Nernst equation. Equation is Nernst equation. Which is used to calculate delta G EMF, etc. at non-standard or at ठीक है non-standard condition. So from thermodynamics, we got a relation of delta G as delta G is equals to delta G naught minus NF E cell. E cell is basically the potential of the cell. So what is delta G naught here? So here delta G naught is the value of free energy. Delta G is free energy. I explained that in detail in the previous lecture. If anybody don't know, what is delta G, I explain it again. So you can type in the chat box. तो delta G क्या होता है? delta G फ्री एनर्जी है. तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो हम उसमें डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर 1 मोलर कंसंट्रेशन पर पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर कंडीशंस यहाँ पे हमारी नॉन स्टैंडर्ड हो गई, क्योंकि टेम्परेचर तो सेल में कुछ भी हो सकता है, एनी टेम्परेचर हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, भी चेंज हो सकती है. विद द प्रोसेस सेल के अंदर खुद में एक केमिकल प्रोसेस होते रहता है, तो उसकी वजह से भी हीट रिलीज होती है, तो उस हीट रिलीज से भी सेल का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फोन में बैटरीज होती है, तो हमारा फोन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हीटअप होता है.
क्यों हीट अप होने लगता है? कि उसमें केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली होते रहता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारी जो वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड तो नहीं रही, स्टैंडर्ड कंडीशंस तो नहीं रही है, अगर टेम्परेचर विद द यूजिंग ऑफ द सेल चेंज हो रहा है। सो इफ द temperature is changing, then we have to find some equation at which help us to calculate potential of the cell, delta G of the cell at any temperature. So from the thermodynamics, we got this equation. Delta G is equal to delta P naught. वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है सर. Is anybody else जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है क्लियरली? और कोई भी है क्या जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है? ठीक है, ठीक है. सो अब डेल्टा जी का मैं फॉर्मूला पता है. डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था. सो वी विल पुट दैट इन दिस इक्वेशन. सो माइनस एन एफ ई सेल is equals to minus NF E naught cell. E naught cell is basically the potential of the cell at the standard condition, and E cell is at any temperature. At any temperature, this one is standard condition. Plus RT ln Q. So this is the equation. So यहाँ पे Q जो है क्वोशंट है, तो जो मैं एग्जांपल से आगे समझाऊंगा. बेसिकली हम इस पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. डिवाइड बाय माइनस एन एफ. अगर मैं पूरी इक्वेशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू. तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन आ गई है, जो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड द ई नॉट सेल. मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी टेम्परेचर एंड द पोटेंशियल ऑफ द कंडीशन. तो इसको यूज करके दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है. नेक्स्ट इक्वेशन का यूज है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हमें पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालना है या डेल्टा जी ऑफ द सेल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. तो दिस इज द इक्वेशन. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जाम्पल से पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, फॉर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दिस इक्वेशन विल बिकम ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log q. So from this equation to this equation there are two changes. First one is ln to log. ln का बेस e होता है और log का बेस 10 में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज log 10 बेस 10 में हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को इजी होता है रादर देन द नेचुरल लॉगरिथम विच इज ln. सो इसलिए हमने वहां पे कन्वर्ट कर लिया. तो वहां पे टेम्परेचर पुट करके 25 डिग्री सेल्सियस, आर की वैल्यू 8.314 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है गैस कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर हमने ये पुट कर दिया, एंड एफ की वैल्यू हमने पुट की है 96500. So we got this simplified equation of the next equation at 25 degree Celsius and in the form of log base 10. ठीक है. सो अगर किसी को डाउट है कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, क्यों यूज होता है, या इक्वेशन में कोई भी टर्म समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन टाइप, यू कैन राइट. आई एम गिविंग यू 2 minutes.
Yeah, I will do some example in the class also. And if we have any PDF, we can share. We can ask the team to share also that to solve for you. ठीक है, पहले एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं. इजी सा एग्जांपल लेते हैं. देयर इज अ सेल कॉल्ड डैनियल सेल. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नेस्ट इक्वेशन कैसे यूज हो रहा है. सो बेसिकली डैनियल सेल में क्या होता है, एज वी नो कि किसी भी सेल में दो हाफ सेल होते हैं, कैनोड होता है, कैथोड होता है. एनोड एंड कैथोड. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास एनोड पे जिंक होता है. इन डैनियल सेल एनोड पे हम क्या लेते हैं? जिंक. जिंक क्या करता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. एनोड पर है तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. कैसे होगा? Zn+2 बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके. और कैथोड पे हमारे पास यहाँ पे कॉपर होता है. बेसिकली कॉपर+2 होता है. तो कॉपर, अब कैथोड है तो क्या होगा? रिडक्शन होगा. रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या होगा? कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके विल कन्वर्ट टू कॉपर. ठीक है. सो द इक्वेशन बिकम्स, फाइनल इक्वेशन बिकम्स Zn प्लस कॉपर+2 कन्वर्टेड टू Zn+2 एंड कॉपर. ठीक है. सो इसमें मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. एंड जो Zn+2 है, गिवन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. Zn+2 की जो कंसेंट्रेशन है इज 0.1 मोलर. एंड जो कॉपर+2 की कंसेंट्रेशन है इज 0.01 मोलर. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द ई सेल. एंड ई नॉट सेल इज गिवन. स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल गिवन है 1.1 वाट. तो अब हमें इस इक्वेशन का कैलकुलेट करना है. फाइंड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फाइंड ई सेल. ई सेल कितना होगा? सो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था. ई सेल इज ई नॉट सेल. 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम डायरेक्ट अपनी इक्वेशन यूज कर लेंगे. -0.0591 बाई एन लॉग क्यू. एंड व्हाट इज क्यू? क्यू इज अ कंसंट्रेशन कोशेंट. तो इस क्यू को कैसे निकालता है? तो क्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं इधर. सो क्यू बेसिकली इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? Zn+2, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास? कॉपर+2. इसकी कंसंट्रेशन का रेशियो जो हो गया है वो क्यों हो जाएगा? Zn+2 की कंसंट्रेशन वी हैव गिवन एज 0.1 मोलर. एंड कॉपर+2 की कंसंट्रेशन वी हैव गिवन एज 0.01 मोलर. So basically what we will get? We will get the 10 because 10 and 100 so कट के ऊपर 10 आ जाएगा. So quotient is 10. So यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी. E सेल, E नॉट सेल 0.0591 n will be 2 because there is a transfer of 2 electron. So this is n. So यहाँ पर log this 10 और Q की वैल्यू भी 10 तो ये 1 हो जाएगा. और यहाँ से हमारे पास E सेल. So this is a very easy example of the Nash equation, of a special case of Nash equation of 25 degree Celsius, because we find the equation at 25 degree Celsius, direct value 0.059. So लिखो इसको, फिर एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा अच्छा वाला.
हाँ, लिख रहे हो ना तुम? कैन यू प्लीज अपडेट ऑन द चैट? लिख लिया हो तो? ओके। अच्छा। तो इसमें यार अगर किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, सो यू कैन आस्क मी, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ नेस्ट। इसमें बिकॉज जो अभी हमने प्रीवियसली जो कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे स्पेशल केस आ जाता है 0.0591 इधर से, एंड द कन्वर्जन ऑफ लॉन टू लॉग, वही है, वही क्वेश्चन है। तो हमने यूज करके एक सिंपल एग्जांपल हमने दिया है। सो किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है कि ये ई सेल कहाँ से आया, या फिर ये 0.0591 का फैक्टर्स कहाँ पर आया। तो अगर किसी को भी डाउट है तो चैट में लिख सकते हो, और समझ आ गया तो यू कैन ऑल्सो टाइप कि या यू कैन ऑल्सो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसी का है इक्वेशन, में लिख लेता हूँ एक बार। सो वी हैव टू कैलकुलेट द ई सेल। द इक्वेशन इज mg converted to mgI2. Concentration is given as 0.1 molar, and I2 solid at a platinum cell। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस तरह से अगर इक्वेशन आ जाए इन दिस फॉर्म, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस टाइप की इक्वेशन आती है, तो मैंने बताया कोई भी सेल है उसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, तो एनोड पे एनोड पे होता है। तो हमारे पास दो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हाफ रिएक्शंस लिखना है। अगर हम हाफ रिएक्शन लिख पाए तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिख पाएंगे, और ओवरऑल रिएक्शन लिख पाए तो वहां से फिर हम डायरेक्ट ई सेल को वहां से निकाल सकते हैं। तो इसके हमें सबसे पहले हाफ रिएक्शंस लिखना आने चाहिए। मैं बताता हूँ हाफ रिएक्शंस कैसे लिखना है। तो राइट हैंड साइड वाले सेल की हम हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं। इसमें क्या रहा है, I2 by gaining 2 electron because there is a reduction is converted to 2I minus, and it is aqueous. And what happened at the left hand side is Mg plus 2 gaining 2 electron converted to Mg. Why I'm writing the reduction reaction of left hand side also? Because everything we calculate, we must converted first into the reduction. अगर मैं याद होगा कि हमने निकाला था, ई नोट सेल निकाला था, तो उसमें क्या था, ई सेल कैथोड का भी क्या था, रिडक्शन था, माइनस ई सेल एनोड। एनोड का भी कौन सा था पोटेंशियल हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल था। तो इसलिए जब भी हम इक्वेशन से अगर हम लिख रहे होते हैं तो हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। दैट्स व्हाई आई राइट द बोथ द रिडक्शन इक्वेशन ऑफ बोथ द हाफ सेल्स। सो अब इसका जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, इस हाफ सेल का पोटेंशियल लिख लेता है। सो I माइनस टू I2 गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल, वही इक्वेशन E नॉट I माइनस टू I2
माइनस आर टी बाई एन एफ, एन कितना है यहाँ पे 2f लॉन ऑफ क्यू आएगा। क्यू क्या होता है, मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही आयन है जो सिर्फ राइट हैंड साइड में है, तो वहां, और जो इधर है वो सॉलिड है। दिस इज अ इन द एलिमेंट फॉर्म। एलिमेंट का क्या होता है वैसे भी, जो कंसंट्रेशन होती है 1 होती है, तो हम सिर्फ इसका लिखेंगे, और इसका राइट हैंड साइड का कहाँ आता है, ऊपर। तो क्या हो जाएगा आई माइनस, एंड देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ 2, तो उसका स्क्वायर। सिमिलरली जब हम इसका लिखेंगे मैग्नीशियम का, सो Mg प्लस 2 स्टैंडर्ड स्टेट पोटेंशियल ऑफ Mg प्लस 2 माइनस आर टी बाई एन, यहाँ पे भी कितना है 2f, देन लॉन ऑफ क्यू। अब यहाँ पे जो आयन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन। सो अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब कोई भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो उस सबसे पहले हमें उसके दोनों हाफ सेल के रिएक्शन लिखने होंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे आयोडीन गिवन था, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मैग्नीशियम गिवन था। अब हमने क्या करा, दोनों की राइट हैंड साइड की एंड लेफ्ट हैंड साइड की सेल इक्वेशन लिख दी। सो द हाफ सेल इक्वेशन इज की आयोडीन में क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो हमें दोनों का क्या चाहिए होगा, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा, कैथोड का भी और एनोड का। तो राइट हैंड साइड इज द कैथोड, तो पहले हमने कैथोड का लिख लिया, I2 का रिडक्शन हो रहा है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वो कन्वर्ट हो रहा है 2I माइनस में। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब Mg विल कन्वर्ट टू Mg प्लस 2 गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। पर हमें रिडक्शन इक्वेशन लिखनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए हमने उसकी भी रिडक्शन इक्वेशन लिखी, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल चाहिए वो Mg प्लस 2 से Mg का चाहिए। Mg प्लस 2 से Mg मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, Mg प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें पोटेंशियल में हमेशा रिडक्शन चाहिए होता है। तो इसलिए हमने इसकी इक्वेशन भी क्या लिखी, रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखी। ठीक है, फिर अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, बट हमने ये वाली इक्वेशन यूज करी, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो स्टैंडर्ड है या नहीं है। जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन ऑफ क्यू, ये किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए था, किसी भी एट एनी टेम्परेचर इट विल वर्क। इसलिए हमने यही वाली इक्वेशन लिखी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है। तो दैट्स व्हाई वी यूज फॉर्मूला। ठीक है, सो अब इसका ओवरऑल इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। ओवरऑल इक्वेशन जो आएगा इसका वो आएगा Mg प्लस I2 गिविंग Mg प्लस 2 aqueous प्लस 2I माइनस aqueous। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेता है। फाइनली मैं क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर Mg प्लस I2 गिविंग प्लस 2I माइनस, हमें क्या चाहिए था ई सेल, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। दिस इज द फॉर्मूला जो हमने पढ़ा नॉन स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। अब यहाँ पे जो था दो हाफ सेल था, तो ई नॉट सेल जो निकलता है वो कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला भी मैंने पीछे भी लिखा था, ई नॉट सेल इज ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड।
ठीक है। सो अब हमने जो तो ये था। अब हमें बताओ प्रीवियसली कैथोड क्या है। कैथोड इज आयोडीन। तो उसका जो जो हमारा कैथोड का पोटेंशियल आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा, ई नॉट सेल। और जो एनोड का आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा, इस फॉर्मूले से। तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल I-2 I2 माइनस ई नॉट सेल Mg+2 to Mg। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। राइट हैंड साइड इज कैथोड एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड। तो इसलिए आयोडीन राइट हैंड साइड पे था, तो कैथोड माइनस एनोड का हमने पोटेंशियल लिख के पूरे सेल का हमने ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे डायरेक्ट। ई नॉट सेल यहाँ से आ जाएगा, ई नॉट I-2 माइनस ई नॉट Mg+2 to Mg माइनस RT NH2F। Q is this equation, this is the overall equation। क्यू में क्या होता है, राइट हैंड साइड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे Mg+2 है, उसका कंसंट्रेशन, और राइट हैंड साइड पे 2I माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है तो 1। तो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एक इक्वेशन दी गई, दिस इज अ वे ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्वेशन ऑफ टू हाफ सेल। ये इक्वेशन हमें मिली। इसमें क्या हो रहा है कि mg विल कन्वर्टेड टू as you can see mg is converted to Mg+2 and I2 is converted to 2I minus। ठीक है, I2 is converted to by gaining 2 electron converted to 2I minus। Mg is converted to Mg+2 by losing 2 electron। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का इक्वेशन आती है, सबसे पहले हमें उसके हाफ सेल रिएक्शंस लिखने होंगे कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। एक बार हमें ये पता चल गया एनोड पे क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी स्पीसी आ रही है, उसकी क्या कंसंट्रेशन, हमें ये पता चल गया। कैथोड पे क्या किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बन रहा है, रिडक्शन हो गया, ये पता चल गया। तो हम उसका हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है। और एक बार हमें हाफ सेल का पोटेंशियल पता चल गया, तो हाफ सेल के पोटेंशियल से हम जो फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू, उसमें जो ई नॉट सेल है पूरे सेल का, दोनों हाफ सेल का मिक्स करके, जैसे ये फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड, सेल का निकाल सकता है। तो अगर हमें कैथोड का पता है, हमें पूरे सेल सेल पता है। अगर हमें पूरे सेल पता है तो वो मैं पूरे सेल के इक्वेशन में पुट कर दूंगा। और आर टी बाई एन एफ ऑब्वियस कंसंट्रेशन तो मुझे पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनली सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो अगर किसी को डाउट है कि हाफ इक्वेशंस कैसे लिखी गई, या कैसे मैंने इस यहाँ से हाफ रिएक्शंस लिख दी राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट प्लीज चैट में लिख दो एक बार। अगर किसी को नहीं समझ आया कि ये हाफ रिएक्शंस कैसे लिखी हैं, या पोटेंशियल कैसे आ गया है हाफ रिएक्शन से, फिर फाइनली उसको सिंगल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करा गया है, किसी को भी डाउट है तो एक बार लिख दो चैट में।
Hello, is I'm audible? हेलो, हो ना तुम लोग यहाँ पर? हाँ, ठीक है। Is anybody have any doubt? Let me know. चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ यार थोड़ा। मुझे कैसे पता चलेगा तुम हो या नहीं हो? Can I move to the next topic? Okay, okay, Shivanshi. Shivanshi is responding. I request everybody to please respond in the chat box. किसी को कुछ भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन समझ में आई है, और any specific doubt you can also ask me. In the starting of the class, you can type your general doubts or anything related to like preparation strategy or anything. So I can also guide you in that also. Okay. So we will move to the next topic. Okay. So next we will study the concentration cells. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल्स पढ़े। फिर उसमें हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इक्वेशन में आरटी बाई एनएफ ये सब का हमारे टर्म्स आ रहे हैं। तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन भी था, उसमें हमारा टेम्परेचर भी था। सो सेल्स में क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल्स का मतलब ये है कि इफ देयर इज अ सेल जिसका मैं टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट रख देता हूँ, तो उसको मैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज कर सकता हूँ। मतलब उसका अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूँ तो उसके पोटेंशियल में कैसे चेंज आएगा? बाय ओनली चेंजिंग द कंसंट्रेशन। सो वी विल स्टडी लाइक हाउ बाय ओनली चेंजिंग द कंसंट्रेशन पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। वी विल ऑल्सो स्टडी द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो गैल्वेनिक में क्या डिफरेंस है एंड कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस? एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसा भी हमने डैनियल सेल पढ़ा था, उसकी इक्वेशन थी Zn से Zn+2 विच इज ZnSO4, और देन कॉपर+2 से विच इज कॉपर SO4 से कॉपर। ठीक है, इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? फर्स्ट पॉइंटर। और द रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इज कन्वर्टेड टू Zn+2 बाय लूजिंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? कॉपर+2
by gaining 2 electron will convert it to copper. ठीक है. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है? There is a net chemical change. दूसरी तरफ if I will take the example of a concentration cell, इसमें क्या होता है? No net chemical change. No net chemical change. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो गया. मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी C1 यहाँ पर. फिर द सिमिलर मेटल M प्लस ऑफ अ डिफरेंट कंसंट्रेशन C2 रिड्यूस हो रहा है M में. सो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और Zn प्लस कॉपर प्लस 2 will give to Zn प्लस 2 प्लस कॉपर. और अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? M is converted to M plus. हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कंसंट्रेशन सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस द गैल्वेनिक सेल एंड द कंसंट्रेशन सेल्स. सो गैल्वेनिक सेल्स तो हमने पढ़े थे. सिंपली क्या होता है गैल्वेनिक सेल में? देयर इज एन एनोड, देयर इज अ कैथोड. नेट. ठीक है. तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो. यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया डैनियल सेल का, जो भी हमने फर्स्ट एग्जांपल करा था नाश इक्वेशन का. तो उसमें जिंक विल कन्वर्टेड टू Zn+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर+2 बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्टेड टू कॉपर. सो यहाँ पे जब हमने ओवरऑल इक्वेशन लिखी, सो देयर इज सम टर्म Zn+2 में कन्वर्ट हो गया और कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो गया. सो देयर इज अ केमिकल चेंज. यहाँ पे क्या आ रहा है? केमिकल चेंज है. बट इन द प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन सेल उसमें हमने सेम मेटल यूज किया है, सेम कंपाउंड यूज किया है, बट एट डिफरेंट कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल जैसे M एनोड पे क्या हो रहा है? जो M है वो एनोड पर भी वही है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर M प्लस में कन्वर्ट हुआ. और कैथोड पर M प्लस जिसकी कंसंट्रेशन लेट्स एग्जांपल C2 है, it gains a electron converted to again M. So if I write a overall reaction, तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन सेल. सो अब यहाँ पर देखो, इसमें ओवरऑल रिएक्शन में दोनों साइड पर ही क्या है? M प्लस है. इधर भी M प्लस है और इधर भी M प्लस है. बस डिफरेंस इसकी, यहाँ पर M प्लस की वो C2 है और यहाँ पर जो M प्लस की कंसंट्रेशन है C1. तो यहाँ पर कोई भी नेट केमिकल चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन सेल में, बट देयर इज अ नेट केमिकल चेंज इन द गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल में Zn से Zn+2 बना है एंड कॉपर+2 से कॉपर बना है.
तो कुछ केमिकल चेंज हुआ है, उसकी स्टेट चेंज हुई है, आयनिक फॉर्म में गया है, जिंक Zn+2 बना है, कॉपर+2 कॉपर में गया है, बट उधर M+M+ में ही है, आयनिक टू आयनिक सेम कंपाउंड है, बस क्या डिफरेंस, कंसंट्रेशन अलग है, दैट इज द डिफरेंस। किसी को भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज चैट बॉट पे एक्टिव हो जाओ यार, थोड़ा क्वेश्चंस पूछो, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए सेशन। एक बार लिख लो इसको, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो यहाँ तक समझ आया कि गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल में क्या डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल चेंज होता है, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और कंसंट्रेशन सेल में हमारा M+ ही एट C1 कंसंट्रेशन से वो M+ में ही बन रहा है, बट एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन जी C2। तो कंसंट्रेशन सेल में जो कंपाउंड है उसकी स्टेट सेम है, M+to M+, बट कंसंट्रेशन अलग है, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा, देयर इज ओनली अ फिजिकल चेंज विच इज अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बना रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पे फ्री एनर्जी चेंज मिल रहा है बाय चेंजिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से हमें क्या मिल रहा है, फ्री एनर्जी चेंज मिल रहा है, उस फ्री एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे जब Zn, सेकंड पॉइंट है, हाउ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कैसे हो रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे तो ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है। When Zn is converted to Zn+2 by losing some electron, so it will give some free energy. It will release some free energy, which will then convert it to electrical energy by some process. ठीक है, तो फ्री एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है गैल्वेनिक सेल में, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से हम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर। बट हमारा कंसंट्रेशन सेल्स में वो कैसे हो रहा है, सो कंसंट्रेशन सेल में हमारा क्या हो रहा है, M+ at will convert it to M+ at some concentration C2। तो ये जो C1 से C2 का जो चेंज है, द कंसंट्रेशन चेंज,
कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज विल लाइब्रेट सम फ्री एनर्जी. दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द कंसंट्रेशन सेल. तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंस क्या हुआ? सेकंड डिफरेंस ये हुआ कि जो सेल्स होता है उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है. तो गैल्वेनिक सेल में वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है? गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं. जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn विल कन्वर्टेड टू Zn+2, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, लाइक कॉपर+2 विल कन्वर्टेड टू कॉपर. तो उस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से, उस चेंज की वजह से देयर इज सम फ्री एनर्जी. अब Zn+2 में कन्वर्ट होगा, सम फ्री एनर्जी विल लाइब्रेट, सो जिसकी वजह से वो फ्री एनर्जी विल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कंसंट्रेशन सेल में तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, M प्लस से M प्लस ही है. कोई भी ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा केमिकल चेंज नहीं हो रहा. तो जब केमिकल चेंज है तो हम एनर्जी कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं? सो जो कंसंट्रेशन चेंज है C1 टू C2 की वजह से कुछ हमारा फ्री एनर्जी लाइब्रेट हो रही है. एनर्जी विल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो किसी को डाउट है इसमें सेकंड पॉइंट में? है नहीं डाउट? डाउट वाउट नहीं आता क्या तुम लोगों को? हमें तो बहुत डाउट आते थे आज जेई के तैयारी में. प्लीज प्लीज आस्क योर डाउट इन चैट बॉक्स, आई रिक्वेस्ट, बिकॉज अगर तुम डाउट नहीं पूछोगे ना तो मैं कॉन्सेप्ट ढंग से समझ नहीं आएगा. मैं आऊंगा यहाँ पे लिख के पढ़ा के चला जाऊंगा तो मैं कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, डाउट नहीं पूछोगे तुम. सो डाउट पूछो यार. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है तो. E naught cell is non-zero of galvanic cell, and for the concentration cell, E naught cell is zero. तो कोई भी केमिकल चेंज हो ही नहीं रहा है, तो जो पोटेंशियल ऑफ द सेल है वो इसमें नॉन जीरो रहेगा स्टैंडर्ड कंडीशन पर. और इसमें क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसमें केमिकल चेंज होता है तो इसमें नॉन जीरो है, इसमें केमिकल चेंज होता है तो इसमें क्या है? जीरो है. तो यार एक बार चैट में बता दो कि समझ आए तीनों पॉइंट्स. लिख लो इसको एक बार. ठीक है, डाउट ही नहीं आ रहा है लोगों को. Studying. So we will study the type of the concentration cell. So the first concentration cell is gas. इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार. प्लेटिनम, हाइड्रोजन at P1 pressure
will convert it to H plus C concentration, will convert it to hydrogen at P2 pressure. सो अभी हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल में सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज होता है, जो कंपाउंड है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है बट द यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और कैथोड पर भी हाइड्रोजन है। कैथोड पे भी हाइड्रोजन है, एनोड पे हाइड्रोजन है। द ओनली डिफरेंस की जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर इज P1, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर इज P2। सो द डिफरेंस कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा और कंपाउंड सेम रहेगा, तो दैट सेल इज द कंसंट्रेशन सेल। तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? कंसंट्रेशन सेल में आ जाएगा। कंपाउंड सेम है, सिर्फ कंसंट्रेशन अलग है। या फिर उसका जैसे यहाँ पे गैस है तो गैस का अगर पार्शियल प्रेशर अलग है तो वो जो सेल आ जाएगा दैट विल कम्स अंडर द कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। सो अब इसके हम हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या हो रहा है एनोड पे, क्या हो रहा है कैथोड पे, क्या हो रहा है लिख लेते हैं। एनोड पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मान लो कि हाइड्रोजन एनोड पे क्या है P1 लेफ्ट हैंड साइड, तो हाइड्रोजन एट P1 प्रेशर will convert it to H plus at C concentration by losing a electron. जो H plus है of C concentration by gaining electron will convert it to hydrogen but at a different pressure which is P2। तो यहाँ पे over H plus correlation आ जाएगी जो half H2 at P1 pressure, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, H plus कट जाएगा, तो क्या बचेगा half H2 at P2 pressure। ठीक है। तो समझ आया यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल में। यहाँ पे तक कुछ डाउट है तो पूछो यार कि ये हाफ सेल कैसा आया, एनोड पर कैसा आया, कैथोड पर कैसा आया। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा कंसंट्रेशन रहा हूँ बट यहाँ पे जो चेंज है वो प्रेशर में आ रहा है। तो ऐसे कुछ डाउट है तो पूछ लो यार चैट बॉक्स में। नहीं है? ठीक है। तो अब अगर हमें इसका पोटेंशियल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग राइट हैंड साइड बाई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज P2 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज P1। 2.303 कहाँ से आया, लॉन टू लॉग। ठीक है। ओके ओके शिवांशी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड में यहाँ पे हमारे पास हमने पढ़ा कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल में हमारा जो कंपाउंड है वो सेम होता है, या तो उसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा या फिर उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एनोड पे भी हाइड्रोजन गैस है और कैथोड पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे जो गैस है H2 कन्वर्ट होगी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन H प्लस। क्यों? क्योंकि एनोड पे हमारा हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज कब होगा, जब H2 विल कन्वर्टेड टू H प्लस। और हमें ये गिवन है, दिस इक्वेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड गैस। सो हमें पता है कि एनोड है उसका जो प्रेशर
तो हमारा हाइड्रोजन एनोड पे P1 प्रेशर से विल कन्वर्टेड टू H प्लस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और H की ब्रैकेट में लिख दी। और सिमिलरली कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, तो कैथोड पे रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि जो कैथोड का प्रेशर है वो क्या गिवन है हमें? P2 गिवन है। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइब्रेट होगा उसका प्रेशर कितना होगा? P2 होगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी उसमें बस हमारा हाइड्रोजन फ्रॉम P1 प्रेशर टू हाइड्रोजन टू P2 प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है। बीच में कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि जो बीच में H प्लस बन रहा है वो तो ओवरऑल रिएक्शन में कट जाएगा। तो शिवांशी अभी क्लियर है या एक और बार बताऊं अगर कुछ डाउट है तो? देखो, हाफ रिएक्शन में लिखते हुए बस ये याद रखो कि हमारे पास क्या होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब हमारा H2 H प्लस बनेगा। H2 H प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के बनेगा ना वो। तो H2 से हमने क्या बनाया? H प्लस बनाया बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन होता है तो कब होता है? रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारा हाइड्रोजन बनेगा, मतलब H प्लस में जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो H2 बनेगा। तो जब H प्लस में हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो H2 बनेगा। वो हम यहाँ से भी रीड कर सकते हैं कि H2 से H प्लस बन रहा है और H प्लस से H2 बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? एनोड। तो H2 से H प्लस बन रहा है, तो H2 से H प्लस बन रहा है। और राइट हैंड साइड पे होता है कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है? H प्लस से H2 बन रहा है, तो H प्लस से H2 बन रहा है। ओके। फिर ये हमने जो नॉर्मल हमारी इक्वेशन है ई सेल की वो लिख ली। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.03 आर टी बाई एन। दिस इज अ फैक्टर जो यूज किया जाता है लॉन टू लॉग। ओरिजिनल फॉर्मूले में यहाँ पे लॉन था, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? फैक्टर ले लिया। तो ये था हमारे इलेक्ट्रोड गैस। तो एक बार इसको लिख लो, फिर हम दूसरा पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, स्पॉन्टेनिटी। तो नो डैट कि कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब होता है? कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब होता है? कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस होता है जब उसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव, तभी वो सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है, मतलब एनोड पे जो हाइड्रोजन विल कन्वर्ट टू H प्लस, कैथोड पे H प्लस H2, और कन्वर्टिंग टू H2 at P2 प्रेशर, ये सारी रिएक्शन फिजिबल होंगी कब? ये सारी रिएक्शन फिजिबल होंगी when the cell is spontaneous, and the cell is spontaneous when और ये cell is positive। ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कंसंट्रेशन सेल्स में ई नॉट सेल क्या होता है? जीरो होता है। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है विल बिकम ई सेल इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग P2/P1। तो इस माइनस को अगर मैं लॉगरिथम में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 2.303 आर टी बाई एन एफ
log P1 by P2. This is our E cell, potential of the cell. तो समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता तो हमारा ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जीरो। सो ये जो इक्वेशन है ई सेल ई नॉट सेल, ये वाली इक्वेशन है, इसमें ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ई नॉट सेल जीरो हो गया तो जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी -2.03। ठीक है, 3.303 बाई एन एफ लॉग पी टू बाई पी वन। तो मैं माइनस जो था यहाँ पर, इस माइनस को मैं लॉग में ले गया तो पी टू बाई पी वन का क्या हो जाएगा, पी वन बाई पी टू हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस सेल्स है, नेक्स्ट पेज पर आ जाता है, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस सेल्स की जो कंडीशन है वो है कि जो इनका ई सेल है मस्ट बी पॉजिटिव। और अभी हमने लास्ट पेज पे निकाला है कि जो ई सेल है वो 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग पी वन बाई पी टू। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो दिस टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये अगर पॉजिटिव है दैट मीन P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। दिस इज द कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल कि जो हमारा P1 है वो P2 से बड़ा होगा। P1 क्या है, P1 इज एनोड साइड प्रेशर, P2 इज कैथोड साइड प्रेशर। तो जो हमारे इलेक्ट्रोड सेल्स हैं उसमें हमें एनोड साइड पे जो हमने हाइड्रोजन दी उसका जो पार्शियल प्रेशर P1 है वो अगर ज्यादा होगा, जो कैथोड साइड पे हाइड्रोजन हमारी H++ इलेक्ट्रॉन लाइब्रेट हो रही है उससे ज्यादा होगा, तभी हमारा ये जो सेल है जो इसकी रिएक्शन से स्पॉन्टेनियस है, तभी हमारा जो जो इसमें चेंज होने की वजह से जो फ्री एनर्जी लाइब्रेट हो रहा है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को भी डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में बोल दो। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पॉइंट। डाउट है किसी को इसमें, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल में? सिमिलरली क्या होता है, सेकंड टाइप जो होता है मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा गैस हो गया, तो इसमें गैस थी तो हमारे पास क्या आ गया, ई सेल आ गया 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग P1 बाई P2। जो सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। सिमिलरली अगर तुम ड्राइव करोगे तो उसमें से P आ जाएगा, ई सेल इज 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग C1 बाई C2।
बस प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। बाकी चीजें सिमिलर है। कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन चेंज होगा, और गैस है तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद एग्जांपल करने वाला हूँ, फिर उसमें तुम्हें डाउट आएगा अगर अभी क्लियर नहीं करोगे। ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। सेल की बना हमें Hg, Zn, C1 concentration converted to Zn plus 2, C concentration Hg, Zn, C2 concentration at 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर सिर्फ मैं ये इक्वेशन लिख, मतलब मैंने सिर्फ ये एक इक्वेशन टाइप लिख दिया, तो क्या तुम इसको देख, ये जो इक्वेशन में लिखी है, क्या तुम इसको देख के बता सकते हो कि ये गैल्वेनिक सेल है, ये कंसंट्रेशन सेल है? हमने दोनों सेल्स का डिफरेंस पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल चेंज होता है, कंसंट्रेशन सेल में नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल में जो एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो बाय रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से होता है। कंसंट्रेशन सेल में कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से होता है। गैल्वेनिक सेल में जो ई नॉट सेल है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि वहां पे केमिकल चेंज है। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल जीरो होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। बट हमने इस टाइप की इक्वेशन गैल्वेनिक सेल में भी पढ़ी थी, और इसी टाइप की इक्वेशन अब मैं कंसंट्रेशन सेल में ही पढ़ा रहा हूँ। तो क्या मैं ये इक्वेशन देख के बता सकता हूँ कि ये गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन है या कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन है? तो चैट में लिखो, तुम बता सकते हो या नहीं। हेलो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं, जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड होता है, एनोड पे भी और कैथोड पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल एनोड पे मैंने जिंक ले लिया, तो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि Zn कन्वर्टेड टू Zn प्लस टू। ठीक है। फिर बीच में हमारे क्या आ जाएगा, यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। उसके बाद जो कैथोड है रिडक्शन, उसमें लिखूंगा कॉपर प्लस टू कन्वर्टेड टू कॉपर। दिस इज गैल्वेनिक सेल, दिस इज कंसंट्रेशन सेल। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है। गैल्वेनिक सेल में दो कंपाउंड है, पहली बात तो जिंक एंड कॉपर, और यहाँ पे हमारे पास चार चेंजेस है। जिंक जैसे 1, 2, 3, हमारे पास यहाँ पे चार कंपार्टमेंट्स है, मतलब देख सकते हो यहाँ पे Zn प्लस में है, कॉपर प्लस टू कॉपर। बट जो हमारे पास ये सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 कंपार्टमेंट है। एंड ऑल्सो द कंपाउंड इज सेम, जिंक जिंक जिंक। यहाँ पे जिंक जिंक एंड कॉपर एंड कॉपर। तो ये डिफरेंस है गैल्वेनिक में कंसंट्रेशन में। इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ कि ये गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन है, कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन। अगर सेम कंपाउंड है पूरी इक्वेशन में, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन सेल होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज होता है। और अगर दो डिफरेंट कंपाउंड है तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो क्या है, गैल्वेनिक सेल है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब अपना एग्जाम्पल पे आता है। इसको मैं वो कर देता हूँ, नॉट इन द क्वेश्चन, ब्लैक तो दिख भी नहीं रहा है स्टिल। ठीक है। सो क्वेश्चन है कि वी हैव टू कैलकुलेट द EM, वही पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल हमें कैलकुलेट करना है। गिवन है,
जिंक की कंसंट्रेशन गिवन है एनोड पर, 2 ग्राम इन 100 ग्राम। और कैथोड पर गिवन है, क्योंकि एनोड पर भी जिंक है और कैथोड पे भी जिंक है, तो इसलिए एनोड पे क्या कंसंट्रेशन और कैथोड पे क्या कंसंट्रेशन है जिंक की, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज होने पर ही तो हमारा कंसंट्रेशन होता है। हाँ, शिवांशी देखकर भी पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि देखकर तुम्हें एक क्वेश्चन, जब हम एग्जाम में होंगे या लेट्स सपोज बोर्ड का एग्जाम है या फिर कोई भी जेई का एग्जाम है, तो हमें पास उतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पहले देखें कि ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें मैं क्या क्वेश्चन लगाऊंगा, या कंसंट्रेशन सेल है, इसमें मैं कौन सी क्वेश्चन लगाऊंगा। तो हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि दिस इज द कंसंट्रेशन सेल, दिस इज द गैल्वेनिक सेल, ताकि हम बहुत जल्दी प्रोसेस कर पाए चीजों को। और हमेशा ट्राई करना है कि जब भी क्वेश्चन करो उसमें चीजों को शॉर्ट में लिख लिया करो। इसलिए मैं इस तरह से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि जेई में तो उतना टाइम नहीं होता कि तुम चीजों को अच्छे से लिखो या फिर तुम अच्छे से इक्वेशन लिखो फिर उसमें पुटअप करो ये सब करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुमने 2 लाइंस पढ़ी हैं तो उन 2 लाइन या 3 लाइन को तुम एक सिंगल वर्ड में कैसे समराइज कर सकते हो। जैसे इस पूरे क्वेश्चन को मैं अगर देखूं तो मैं सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा कि हाँ ये इक्वेशन है, मुझे समझ आ गया कि दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल। फिर मेरे को समझ आ गया कि जिंक है एनोड पे और जिंक है कैथोड पे। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 2 ग्राम इन 100 ग्राम है, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जिंक की क्या कंसंट्रेशन है एनोड पर, मैं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा जिंक की क्या कंसंट्रेशन है कैथोड पर, मैं वो लिखूंगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ही हो गया। मुझे जिंक की एनोड पे कंसंट्रेशन पता चल गई, मुझे जिंक की कैथोड पे कंसंट्रेशन पता चल गई। कैथोड पे हमारा 1 ग्राम है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। एनोड पे भी क्या हो रहा है, Zn की जो कंसंट्रेशन है, लेट सपोज C1 है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या हो रहा है, जो Zn है, Zn+2 gaining 2 electron will convert it to Zn if C2 concentration। ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है हमारा, ओवरऑल हमारा हो रहा है कि Zn C1 कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, Zn C2 कंसंट्रेशन पे जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो ई सेल है वो कैसा आएगा, ई सेल इज 2.303 RT NF log T2/C1, राइट बाई लेफ्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी, चैट में बताओ। शिवांश, यू कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या होगी अगर ये कंसंट्रेशन सेल है तो, ई नॉट की वैल्यू होगी 0। 0 क्यों होगी, या यू आर राइट, 0 होगी बिकॉज देयर इज नो केमिकल चेंज, देयर इज नो नेट केमिकल चेंज। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या, तो अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारे पास ई सेल है, हमारे पास -2.303 आर, आर की वैल्यू कर देंगे, टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है वो पुट कर देंगे, एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 है। कंसंट्रेशन हमारे पास कैसा है, कंसंट्रेशन हमारे पास 2 in 100 ग्राम एंड 1 in 100 ग्राम। तो 100 कट जाएगा 2/1, तो log 2 आ जाएगा यहाँ से। सो ये रहा। सो कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में। अभी मैंने बताया कि इस इक्वेशन को देख के गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल में कैसे पता करना है। और अगर कंसंट्रेशन सेल है तो तुम्हें पता चल गया है कि जिंक ही कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, बट विद अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब मैं तुम्हें इसका एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को, लेट सपोज तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं तो ठीक है तुम्हें लिखना होगा इस तरह से, बट इफ यू हैव टू सॉल्व इट इन जेई, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को जेई में सॉल्व करना है
तो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को जेई में सॉल्व करना है तो तुम कैसे करोगे? तुम्हें ये पता चल गया कि जिंक C1 से जिंक कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, C2। ये तुम्हें गिवन थी 2 in 100 विच इज C1। ये तुम्हें 1 in 100 विच इज C2। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये मुझे पता है, ये क्या है, एनोड। हमेशा क्या होगा, एनोड से कैथोड ही तो हो रहा है, एनोड टू कैथोड ही तो हो रहा है। कंसंट्रेशन सेल में यहाँ पे एनोड वाला टर्म आ रहा है, यहाँ पे कैथोड वाला टर्म आ रहा है। देख लो चाहे तुम, यहाँ देखो, यहाँ पे जो आ रहा है फाइनल ओरल इक्वेशन में, यहाँ पे एनोड आ रहा है, यहाँ पे कैथोड आ रहा है। Zn C1 क्या है, एनोड। C2 क्या है, कैथोड। तो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा ही तो एनोड से कैथोड आ रहा है कंसंट्रेशन सेल में। तो मैं तो सीधा एनोड की कंसंट्रेशन उठाऊंगा और कैथोड की कंसंट्रेशन उठाऊंगा, देख दूंगा इस पर। फिर उसी RT/NF। मुझे ये पता है कि जो लॉग होता है ये क्या होता है, राइट राइट टू लेफ्ट, मतलब कैथोड टू राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट में क्या होता है, कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। तो दिस इज वर्क ऑफ 5 सेकेंड्स। दिस इज द वर्क ऑफ 5 सेकेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना से 5 सेकंड। जेई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है, एडवांस में तो नहीं आएंगे, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है कंसंट्रेशन सेल के ऊपर। तो तुम 5 सेकंड में कर सकते हो। तुम्हें पता है हमेशा एनोड से कैथोड होता है, और ये इक्वेशन में हमेशा कैथोड एनोड आता है। डायरेक्ट कंसंट्रेशन उठा के डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। समझ आया ये? इसको लिख लो एक बार। किसी को कोई भी डाउट है तो इन द मेन टाइम तुम लिख सकते हो चैट में। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ आज। हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल्स में जो भी चीजें पढ़ी थी वो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे पढ़ी थी। मतलब हमने जो EMF निकाला था, डेल्टा जी निकाला था, पोटेंशियल सेल, ये सब जो हमने कैलकुलेट करा था, ये सब चीजें हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पढ़ा था। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टाइप के स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही हमने। अब मान लो मैंने बोला कि मैं टेम्परेचर, एग्जाम्पल बताइए, जो हमारा फोन होता है उसमें लेड स्टोरेज बैटरी होती है। सो जो लेड की बैटरी है वो विद द टाइम केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर चेंज भी होता रहता है। तो अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है विद टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से रिलेट करें, क्योंकि हमने अभी तक तो फिक्स टेम्परेचर पे पढ़ा था स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। तो उस चीज को रिलेट करने के लिए ही हमने पढ़ी थी नस्ट इक्वेशन। उस चीज को रिलेट करने के लिए हमने पढ़ी थी नस्ट इक्वेशन। सो नस्ट इक्वेशन में क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड स्टेट से अलग, स्टैंडर्ड स्टेट और एक डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। सो डेल्टा जी नॉट जो है यहाँ पे, दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी, बट डेल्टा जी इज नॉट ए स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी, इट इज अ फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एट एनी कंसंट्रेशन जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे टी क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, और जो क्यू है वो किसको रिलेट कर रहा है, कंसंट्रेशन को रिलेट कर रहा है। कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट ही तो है क्यू, हैंड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड की कंसंट्रेशन ही तो क्यू है।
तो Q से हमारा क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रहा है तो वो भी इसमें कवर हो रहा है। T से तो हमारा डायरेक्ट अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो इसमें कवर हो रहा है, अगर T है तो डायरेक्टली टेम्परेचर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन हो रहा है तो उससे Q चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमारा डेल्टा G चेंज हो रहा है। तो दिस रिलेशन विल गिव कि स्टैंडर्ड स्टेट में और किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन में कैसे हम निकालेंगे अगर हमें स्टैंडर्ड स्टेट का गिवन है। उसके बाद हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई सेल लिखा, फिर हमने एक ई सेल की पोटेंशियल ऑफ सेल की इक्वेशन भी निकाल ली। अब यहाँ पे भी देखोगे तो पोटेंशियल ऑफ द सेल है, और ये जो है स्टैंडर्ड स्टेट पोटेंशियल ऑफ द सेल है। तो स्टैंडर्ड स्टेट अगर हमें गिवन है तो हम किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। तो एनी टेम्परेचर एनी कंसंट्रेशन हम पोटेंशियल ऑफ द सेल निकाल सकते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड स्टेट का गिवन है। फिर वो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट वो निकाल लिया, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में जो आता है 25 डिग्री वाला केस ही आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू हम पुट करना है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इक्वेशन लिख ली थी। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया डैनियल सेल का, जिसमें हमने नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है वो देखा। तो इसमें एनोड पे क्या हो रहा है, जो जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, कैथोड पे जो कॉपर है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, रिडक्शन होके ओवरऑल रिएक्शन ये आती है। तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन था टेम्परेचर, तो हमने जो सिंप्लीफिकेशन वाला केस है वो लगा दिया यहाँ पर 0.0591 वाला। तो ई सेल ई नॉट सेल हमें गिवन कितना 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय जो एन एम आर टू, और यहाँ से हमने कंसंट्रेशन निकाली राइट हैंड साइड to divide by left hand side. So right hand side is zinc plus 2 and left hand side is copper plus 2. तो यहाँ से Zn+2 डिवाइड बाय कॉपर प्लस 2 से हमारा जो Q आ गया वो 10 आ गया, तो हमने पुट कर दिया, फिर डायरेक्ट आंसर आ गया। किसी भी स्लाइड में डाउट हो तो मेरे को रोक देना, दोबारा बता दूंगा। फिर ये अनदर एग्जांपल था जिसमें राइट हैंड साइड पे जो आयोडीन है वो रिड्यूस हो रहा है आई माइनस में, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एम, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है Mg+2 में, पर जो Mg+2 है उसका भी हमने क्या लिखा, रिडक्शन रिएक्शन लिखी। क्यों लिखी, क्योंकि जो हमारा ए नॉट सेल है वो कैथोड रिडक्शन माइनस एनोड रिडक्शन है, उस फॉर्मूला में दोनों ही जो ई नॉट सेल है वो रिडक्शन वाले पोटेंशियल है, तो रिडक्शन वाले पोटेंशियल लिखने के लिए ही हमने रिडक्शन वाली इक्वेशन लिखी। रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया दोनों हाफ सेल का, ताकि हम उसको ओवरऑल में यूज करें। यहाँ पे हमने दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल ओवरऑल रिएक्शन में हमने यूज कर लिया। उसके बाद ये आ गया इक्वेशन पूरा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो गैल्वेनिक सेल्स हैं और जो कंसंट्रेशन सेल, अब कंसंट्रेशन सेल एक नया सेल आया, गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था, हमारा रेडॉक्स चेंज हो रहा था, मतलब केमिकल चेंज हो रहा था, जिंक जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। पर एक कंसंट्रेशन सेल में यह है कि अगर मैं सिर्फ कंसंट्रेशन की वजह से देखना चाहूँ कि सेल में क्या चेंजेस होता है, कि अगर मैं सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करूं तो क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या चेंज होगा, एनर्जी किस तरह से जनरेट होगी, तो एक अलग फील्ड बना दिया इसका, उसको हमने बोल दिया कंसंट्रेशन सेल्स। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, मटेरियल मेटल जो होता है सेम होता है। जैसे गेनोलिक सेल में जिंक है और कॉपर है, इसमें सिर्फ जिंक होगा या सिर्फ कॉपर होगा, जैसे जिंक ही Zn+2 में कन्वर्ट होगा फिर Zn+2 ही जिंक में कन्वर्ट होगा। डिफरेंस ये होगा कि जो Zn+2 एनोड पे बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी, और जो Zn+2 कैथोड पे रिड्यूस होकर जिंक दे रहा है उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी। पहला डिफरेंस तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें केमिकल चेंज होता है, और जो कंसंट्रेशन सेल है उसमें केमिकल चेंज नहीं होता। तो गैल्वेनिक सेल में अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका ई नॉट सेल जीरो नहीं है, और कंसंट्रेशन सेल में नहीं होता तो इसलिए उसका ई नॉट सेल जीरो है। और यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बना रहे हैं वो हमें ये पता है गैल्वेनिक सेल में तो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से बन रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाइब्रेट हो रहा है, उससे फ्री एनर्जी निकलती है, फ्री एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। बट कंसंट्रेशन सेल में तो कोई भी रेडॉक्स चेंज ही नहीं है, कोई भी रेडॉक्स चेंज नहीं है, तो एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे जनरेट हो रही है। तो कंसंट्रेशन सेल में जो कंसंट्रेशन चेंज है जिंक, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज है बट देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो, मतलब जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करे और कैथोड पे कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उसमें हो तो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मतलब जो एनोड पे Zn+2 है और जो कैथोड पे Zn+2 है उन दोनों की कंसंट्रेशन अलग है, जिसकी वजह से कुछ फ्री एनर्जी लाइब्रेट होती है।
that will convert it to electrical energy. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों सेल का डिफरेंस आ गया। फिर मैंने इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल पढ़ाया, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि कंसंट्रेशन सेल में मटेरियल सेम होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, बस इसका एनोड पे प्रेशर अलग है और कैथोड पे प्रेशर अलग है। एनोड पे प्रेशर P1 है, कैथोड पे प्रेशर P2 है। तो एनोड पे P1 वाला जो है वो H प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा है, और कैथोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके P2 प्रेशर वाला बन रहा है। तो इनके ओरल रिएक्शन में क्या होगा, P1 से P2 हो जाएगा। ठीक है, P1 से P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्पॉन्टेनिटी का। तो स्पॉन्टेनियस ऑफ द सेल में स्पॉन्टेनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस ही नहीं है, तो उसमें जो रिएक्शंस है वो खुद से नहीं हो पाएंगी। तो उसमें सिर्फ ये है कि ए सेल अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो सेल क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो उसमें सिंपली ई सेल जीरो करके हम कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गई। फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये जो इक्वेशंस हैं, इसमें सिंपली हम देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन कंसंट्रेशन सेल की है और कौन सी इक्वेशन हमारी गैल्वेनिक सेल की है। उसके बाद सिंपली इक्वेशन पुट करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ समरी। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।